4 مئی 2025 کو اپلوڈ کی گئی یہ ویڈیو تو آپ حضرات نے دیکھ ہی لی ہوگی، جس میں دیوبندیوں کے ایک مولوی پی ایم مزمل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بقول امتیاز پلاموی جو سخت نازیبا اور خطرناک جملہ کہا، جسے خود امتیاز پلاموی دیوبندی نے ہی گستاخی لکھا ہے، جیسا کہ آپ اس تھمبنیل میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو پر میں نے اپنا تبصرہ پیش کیا تھا اپنی اس ویڈیو میں، اور میرے علاوہ بھی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دیوبندیوں کے اس پی ایم مزمل کے اس بیان کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس پر دیوبندیوں میں غیرت جاگی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے گستاخ مولوی اور اپنی دیوبندیت کی پلیدی کو مزید پلید کرنے کے لیے اس سے یعنی پی ایم مزمل سے فون کال پہ بات کر کے دیوبندی نے حسب فطرت اپنے مولوی کے پھیلائے گند کی صفائی کی ناکام کوشش کی اور اپنی بدعقلی اور جہالت کا بدترین مظاہرہ کیا، جسے امتیاز پلاموی دیوبندی نے اس تھمبنیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا، جس کا تحقیقی جائزہ آج کی اس ویڈیو میں لے کر دیوبندیت کی پلید مٹی کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور دیوبندیوں کے جھوٹ مکر و فریب کو بے نقاب کرنے والا ہوں۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، امتیاز پلاموی دیوبندی کی پچھلی ویڈیو کے ان مقامات کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ اپنے پی ایم مزمل دیوبندی کے بیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق جو اس نے کہا، اسے خود امتیاز پلاموی دیوبندی نے کیا کیا قرار دیا تھا۔ کے بعد ملک کی ایسی حفاظت کریں گے، جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے۔ مولانا کی زبان سے کچھ ایسے نازیبہ کلمات نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے، اگر نکل گئے تو ان سے رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے جو ایک سخت جملہ استعمال کیا جو نازیبہ ہے، جس کی آپ بھی حمایت نہیں کر سکتے، وہ جملہ یہ کہ ہم علماء مل کر کے سرحد کی ایسی حفاظت کریں گے کہ جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے۔ یہ جملہ بہت ہی خطرناک ہے کہ جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے۔ دیش بھکتی کو ثابت کرنے کے لیے ایسا جملہ استعمال کرنا غلط ہے۔ اگر آپ کے زبان سے نکل ہی گئے ایسے جملے تو آپ کو چاہیے کہ پبلکلی آ کر کے آپ رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے۔ پھر اس ویڈیو کے ذریعے، پھر ایک ویڈیو بیان کے ذریعے یا آڈیو بیان کے ذریعے آپ عوام کو مخاطب کریں کہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے جو کہ بالکل غلط ہے، میں اسے رجوع کرتا ہوں، میرا مقصد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا ہرگز نہیں تھا، وغیرہ ذالک جو بھی آپ وضاحت دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سنا سامعین آپ نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق جو جملہ دیوبندیوں کے اس مولوی پی ایم مزمل نے کہا، اسے خود امتیاز پلاموی دیوبندی ہی نے سخت جملہ، نازیبا کلمات اور بہت ہی خطرناک جملہ قرار دے کر اسے غلط کہا اور ویڈیو کے تھمبنیل میں اسے گستاخی لکھا ہے اور پبلکلی آ کر رجوع کرنے اور معافی مانگنے کہا ہے، جس پر میں نے ان کے اس کام کی تعریف کی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ لیکن کل امتیاز پلاموی دیوبندی نے یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی، جس میں علی اصغر بواسیری لنگڑے دیوبندی نے پی ایم مزمل سے بات کی ہے اور کیسے اس پی ایم مزمل دیوبندی نے جھوٹ بول کر اور عیاری مکاری کر کے اپنی دیوبندیت کی پہچان دکھائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ وہ کال ریکارڈنگ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم احسان ہے۔ مولانا پی ایم مزمل صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت۔ حضرت پہچانا مجھے آپ نے؟ آپ کا نام علی اصغر صاحب؟ جی 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 جی، گجرات سے۔ جی جی، نمبر ہے حضرت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور حضرت خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم احسان ہے۔ حضرت تو اپنے سید صاحب بول رہے تھے کچھ آپ کے بیان کے متعلق۔ جی، اور بہت سارے ساتھی چرچا بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک مفتی مفتی امتیاز پلاموی صاحب نے بھی ذرا اس سے اختلاف کیا۔ اصل میں سن لیجیے، میں آندھرا پردیش آیا ہوں پروگرام کو۔ جی پھر آپ کا نمبر ہے اس لیے میں اٹھا لیا۔ اصل میں یہ 8 سال پہلے کا سنو بھائی،
अच्छा 8 साल पहले की 8 साल तकरीर। पहले के क्लिप है मौलाना। ये NRC के मौके पर अच्छा जो जी। एहतिजाजी जुलूस जलसे हो रहे थे उस वक्त की क्लिप है ये। अच्छा अच्छा। हालांकि सामाइन ये सरासर झूठ है कि ये वीडियो या ये बयान 8 साल पहले का है। NRC के मौके पर बताया है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि NRC एहतजाज के 8 साल हुए हैं या नहीं। आपको याद होगा कि ये एहतजाज 2019 में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर किया जा रहा था, जिसका कमोबेश 5 से 6 साल होता है। लेकिन ये वीडियो जो YouTube पर अपलोड हुई है वो 2019 में नहीं बल्कि 2020 में, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद उस चैनल का पता लगा ही लिया जिस पर ये वीडियो अपलोड की गई है, और वो YouTube चैनल ये है। देखें इस स्क्रीनशॉट में 5 साल पहले की ये वीडियो बता रहा है, और अब इस स्क्रीनशॉट में देखें 4 जनवरी 2020 को ये वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है। अब सामाईन नाज़रीन आप ख़ुद बताएं कि इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक 5 साल पहले की वीडियो को 8 साल पहले की वीडियो क्यों बताया इस झूठे PM मुजम्मिल देवबंदी ने। और फिर सामाईन ये 8 साल एक बार नहीं बोला है बल्कि कई बार अपनी गुफ्तगू के दरमियान 8 साल इन्होंने कहा है। इसका मतलब 8 साल गलती से नहीं बल्कि कसदन कहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस सियाह झूठ बोलने के पीछे इस PM मुजम्मिल देवबंदी का मकसद क्या है। आइए आगे की गुफ्तगू में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर और वो पूरी क्लिप नहीं आ रही है, वो काट कर डाला जा रहा है। मैंने जो कहा था अच्छा। ये NRC में वहाँ से यहाँ आ गए लोग, आ रहे हैं लोग बोलकर, अमित शाह साहब जो बोल रहे हैं, हाँ बॉर्डर पे आपके लोग ही तो खड़े हैं, हाँ हाँ जी कैसे आ जाएंगे? जी वो सुना। सूरतें होंगी, यहाँ तो बॉर्डर गफलत में रहेगा, जी। यानी तो आप झूठ बोल रहे। हाँ अगर आपकी बॉर्डर में खड़ी की हुई फौज छुप गई है तो एक काम कीजिए, उलमा और मदारिस के तलबा को खड़ाइए आप जी। वहाँ से, इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं आएगा। अगर हजरत जिब्राइल भी आए तो हम कहेंगे जी। हजरत यहाँ से नहीं, डायरेक्ट आप तशरीफ लाइए। हाँ लेकिन हजरत आमिया में के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेना था, उसी वक्त वो बातें हुई। हाँ और वो रुजू रफा दफा हो गया। रुजू कर लिया था आपने? हाँ हो गया, सब हो गया। माशाल्लाह 8 साल पहले की बात है ना हजरत ये। अच्छा 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 अच्छा। नहीं वही मैं कह रहा था, अगर रुजू अगर नहीं किए है तो आप तो बड़े आलिम है हजरत, आपकी तकरीर बहुत वायरल होती है, तो आप जैसे लोगों को जी एहतियात ज़रूरी है, और अगर रुजू कर ली तो बहुत बेहतर बात है। सामाईन नाज़रीन आगे भी इसी तरह की बात करके इन्होंने ये बताया है कि मैंने रुजू कर लिया है, लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि 8 साल से पहले का मामला हो या 16 साल से पहले का, अगर रुजू कर लिया है तो कैसे किया है और इस पर क्या सबूत है कि रुजू कर लिया है। कोई वीडियो कोई ऑडियो तो होगा ही ना, वो पेश करे। और अगर नहीं है और यकीनन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसने न तो तौबा किया है न रुजू किया है, बल्कि झूठ बोलकर बात बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और कह रहा है कि पूरी बात नहीं बताया है, काट कर वीडियो शेयर की जा रही है। हालांकि सामाईन पूरी वीडियो हो या ना हो, जो बात इसने कही है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक, वो पूरी वीडियो या वायरल वीडियो देख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको देखनी हो वो इस वीडियो को पूरी यानी जितनी अपलोड की गई है 5 साल पहले, उसे जाकर सुन सकता है, देख सकता है। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे आप जाकर के सुन लें और देख लें कि इनकी बात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो इन्होंने कही है वो पूरी वीडियो देख लेने के बाद भी किसी किस्म की तब्दीली माना व मफ़हूम में नहीं आती है। लिहाजा ये बहाना ही लग़व और बेकार है कि पूरी वीडियो नहीं है, कट करके शेयर की जा रही है। यही नहीं सामाईन, बल्कि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस तरह चंद माह कबल तारिक मसूद देवबंदी अपनी गलती मानने के बावजूद उसे गुस्ताखी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल उसी तरह ये देवबंदी PM मुजम्मिल भी गलती तो मान रहा है मगर गुस्ताखी मानने को तैयार नहीं है। सुने आगे इस ऑडियो को। हजरत आपने रुजू में आपने क्या बोला था हजरत? मैं वहाँ बैठे, उलमा बैठे थे, हो गया किस्सा खत्म। आपको मिसाल तो लोग आम लोग नहीं समझ सकेंगे, लोग जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में ये बात है। आम लोगों के सामने आम बात होनी चाहिए, इतनी दकीक बात होनी नहीं चाहिए।
बिल्कुल अच्छी सर। बात है। ये कह देना था वहाँ का परिंदा भी नहीं आएगा, हाँ, वहाँ हाँ, की हवा भी हम आने नहीं देंगे, ये बोलने के बजाय आपने हजरत का नाम ले लिया। जी जी जी। बेअदबी और गुस्ताखी तो नहीं हुई है, क्योंकि उनके शान में गुस्ताखी कौन करेगा? कौन करेगा? हजरत जिब्राइल के शान में कौन करेगा वो गुस्ताखी? नहीं, फिर भी अनजाने में अगर निकल गए जुमला तो ठीक है जी। अब आप उसे समझने में यकीनन ठोकर खाए। सामाइन, सुना आपने कि अली असगर बवासीरी लंगड़े ने जब पूछा कि रुजू में आपने क्या कहा था, तो इसका जवाब क्या दिया? ये दिया कि मैं वहाँ बैठे या गए थे, उलमा बैठे थे, हो गया किस्सा ख़त्म। अरे वाह, किस्सा तो शुरू ही नहीं हुआ, फिर ख़त्म कैसे हो गया? सोचे सामाइन, क्या ये रुजू किया गया है? हालांकि सवाल तो कुछ और था। सवाल ये था कि रुजू में आपने क्या कहा था, मगर पीएम मुजम्मिल देवबंदी ने ऐ करके बात को गोलमोल कर दिया और अली असगर बवासीरी उसके हाँ में हाँ मिला रहा है। हालांकि पिछली वीडियो में खुद देवबंदियों के मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी ने कहा था कि पब्लिकली रुजू करें, यानी अलल ऐलान रुजू करें, किसी ऑडियो या वीडियो में बोलकर शेयर कर दें। मगर पीएम मुजम्मिल देवबंदी ने न तो पहले ऐसा किया न ही अब करेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जिस बातिल और कुफ्र पसंद फ़िरक़े यानी देवबंदियत से है, उसके अकाबिर ने क्या किया? यही तो किया है। ये वो अगर मगर लेकिन वेकिन करके तौबा से जान छुड़ाकर भागता रहा, यहाँ तक कि मौत के फरिश्ते ने उन्हें आकर दबोच लिया। बिल्कुल इसी तरह तारिक मसूद ने और उसके बाद इस पीएम मुजम्मिल देवबंदी ने किया है कि गलती तो मान ली मगर तौबा और रुजू नहीं किया, बल्कि गुस्ताखी, जिसे ख़ुद देवबंदी ने गुस्ताखी कहा, उसे इन दोनों ने यानी तारिक मसूद और पीएम मुजम्मिल देवबंदी ने गुस्ताखी मानने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल सामाइन, बताना यह है कि पीएम मुजम्मिल देवबंदी ने बहाना तो बहुत बनाया मगर अपने रुजू पर कोई दुरुस्त दलील न दे सका और न ही दे सकता है कि कभी उसने अपनी इस गुस्ताखी से तौबा और रुजू किया है। और जैसा कि बता रहा है कि उलमा बैठे थे और किस्सा ख़त्म या और भी इधर उधर की जो बातें बना रहा है, इससे ख़ुद देवबंदी उसूल से ये रुजू नाकाबिले एतबार है। अव्वल तो इसलिए कि इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने पब्लिकली यानी अलल ऐलान रुजू और तौबा करने कहा था इससे पहली वाली वीडियो में, तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि ख़ुद देवबंदी उसूल जो इन देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने पेश किया है, वो अब देख लें। यह है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, जिल्द सोम के सफ़ा नंबर 59 पर देखें। लिखा हुआ है कि जिस दर्जा की गलती है उसी दर्जा की माज़रत हो तब उसका तदारुक हो सकता है। लिहाजा इस उसूल की रोशनी में पीएम मुजम्मिल ने गलती जब बरसरे मेंबर अलल ऐलान हज़ारों के मजमा में की है तो उस पर रुजू भी अलल ऐलान ही करना होगा, तब इसका तदारुक हो सकता है। वरना इस बहानेबाजी से अपने अंधभक्त और अक्ल के अंधे देवबंदियों को तो खुश या खामोश कर लेंगे ये लोग, मगर इल्म व अक्ल की दुनिया में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अलमुख्तसर ये कि देवबंदियों को चाहिए था कि अक्ल से काम ले, और जब पीएम मुजम्मिल देवबंदी ने तौबा और रुजू किया ही नहीं, न पहले न अब, बल्कि महज ज़बानी दावा है, तो इस पर वीडियो बनानी ही नहीं थी इन देवबंदियों को, या कम अज़ कम दबाव देकर ही सही पीएम मुजम्मिल देवबंदी से रुजू करवा ही लेना चाहिए था, ताकि कहने को हो जाए कि देखो पहले भी किया था मगर सबूत न होने पर फिर इन्होंने तौबा और रुजू कर लिया है। जिससे आइंदा भी अगर ऐसा एतराज़ होता तो इस वीडियो को पेश करके ये लोग बात को ख़त्म कर सकते थे। मगर इतनी अक्ल इन देवबंदियों को होती तो ये लोग देवबंदी ही क्यों होते? इनकी देवबंदियत ही इनके अक्ल से पैदल होने की वाज़ेह और ठोस दलील है। बाकी सामाईन व नाज़रीन, आप इस वीडियो पर अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो लाइक करके इसे शेयर भी लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।